चलो बोलो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ग्रामर स्कूल। आई एम केमिस्ट्री टीचर मिस राहिला। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry is the branch of science deal with the properties, composition, structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. It also deals with the principle governing changing with matter may undergo. Chemistry has 9 branches. Physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, biochemistry, industrial applied chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, polymeric chemistry. केमिस्ट्री को समझाने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री किस तरह से हमारे हर शोबे में मुहैया है। ये सारी ब्रांचेस किसी न किसी तरह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर तरह के कामों में ये मौजूद होती हैं। I am explain branches of chemistry. First, physical chemistry. It is the branch of chemistry with a deal with the laws and the principle governing combination atom molecules in chemical reactions. Second, organic chemistry. It is the branch of chemistry that we deal carbon compounds with the extraction of carbon dioxide, carbon monoxide metals, carbonates, biocarbonates and carbides. Third, inorganic chemistry is a branch of chemistry is a deal with the chemistry elements and their compounds generally obtained from non-living organisms, from minerals. Fourth, analytical chemistry. It is the branch of chemistry that we deal with the study of the methods, techniques involved determine the kinds, quality and the quantity of the various components. Fifth, biochemistry. It is a branch of chemistry that deal with the compounds with the living organism, plants, animals and their metabolism in the living bodies. Sixth is the industrial chemistry. It's the chemistry branch that deal with the study of a different chemical process involved in the chemical industry. Nuclear chemistry. It is a branch of chemistry deal with study changes occurring the nuclei of atom combined in the emission of the invisible radiations. Environmental chemistry. It is a branch of chemistry that deal with the study of the interactions, chemical materials, their effect on the environment, on animal and plants. Last, 9. Polymeric chemistry. It is a branch of chemistry that especially with the study of the polymerization products obtained throughout the process, polymerization such as the plastics. It has own imprint is the human being. Stop. केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, यानी केमिस्ट्री का हमारे माशरे में क्या इस्तेमाल है ये हम आपको बताते हैं। इसमें जो सबसे वैसे तो हमारा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इस चीज़ का रोल है, इसके फ़ायदे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी केमिकल में यूज़ होती हैं। लेकिन जो सबसे पहला हमारा यूज़ है पॉलीवाइनल क्लोराइड पीवीसी, यानी आप लोगों ने पाइप्स देखे होंगे प्लास्टिक के, ये सारे इसी केमिस्ट्री के तहत केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ इंडस्ट्री में बनते हैं और ये हमारी केमिकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारी केमिस्ट्री मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे फ़ीवर हो गई, डेंसिटी हो गई, क्लोरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, हर तरह की बीमारी चाहे वो कोई डेंजरस डिजीज़ हों उन सब के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। पानी को साफ़ करने के लिए भी हमारी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। क्लोरीन के इस्तेमाल से हम पानी को साफ़ करते हैं। पानी को साफ़ करने की वजह से इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी तरह हमारा इसी तरह के डिफरेंट यूजेस इस्तेमाल होते हैं सिंथेटिक फाइबर के लिए, प्लास्टिक के लिए, मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ग्लास, इम्प्लोसिव्स एंड मेजर गिफ्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री ने हमें इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मुहैया किए हैं जो हमारे माशरे में हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ों का जिक्र किया, अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। जिस तरह से सोप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, डिटर्जेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है,
फाइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें केमिस्ट्री के थ्रू अपने अंदर मिलती हैं और हम इसे यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री कोई पहचान, केमिस्ट्री को मालूमात करने के लिए इसको 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, यानी साइंटिफिक अप्रोच, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक। केमिस्ट्री में जो साइंटिफिक अप्रोच है वो 4 तरह से होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं पहले उसे अच्छी तरह जांच लें, देख लें क्या चीज़ है वो। उसके बाद हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने देखी है उसको, उसके अंदर हमें क्या चेंजिंग्स लानी है, उसके साथ हम क्या चीज़ मिला सकते हैं, वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद हमारी थर्ड चीज़ आ जाती है थ्योरी। थ्योरी के अंदर साइंटिफिक कन्वे किया जाता है, यानी हम अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें इसमें क्या चीज़ मिलानी है। जैसे हमें वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा, ये हमारी थ्योरी हो जाएगी कि हमने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर बनता है। इसी तरह ये साइंटिफिक लॉ होता है, यानी ये सारी चीज़ें जब अप्रोच की जाएंगी तब हमारा एक साइंटिफिक लॉ बनेगा, यानी एक कोई चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। ये 4 चीज़ें हमारी साइंटिफिक अप्रोच कहलाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।